Hello students, this side Dr. Praveen Arora. I hope that you are doing good in your studies. It's my lecture number 4 on IUPAC naming of organic compounds. In this lecture number 4, I would be discussing about the naming of unsaturated substituents. If you feel that my lectures are contributing in your studies, then please subscribe my channel, like the video and share the channel, and don't forget to press bell button so that my coming videos would be notified to you, right? So let's start naming of unsaturated substituents, right? Now here, if we remove one hydrogen from alkene, then the substituent would become alkenyl, right? And if we subtract one hydrogen from the alkyne, then the substituent would become alkynyl. So it would be the pattern for naming unsaturated substituents derived from alkene. It would be alkenyl. Unsaturated substituent derived from alkyne, it would be known as alkynyl, right? And in my previous lectures, I have told you that the substituents are those parts of the organic compound which are not included in the PCC. Substituents organic compound के वो parts हैं which are not included in the PCC, principal carbon chain, right? और अपने पिछले लेक्चर्स में मैं ये आपको बता चुका हूँ कि if E comes before AEYOU, then we need to drop down the E, right? Now let's take the simplest example. Here I have subtracted one hydrogen from ethene, right? So it would be the unsaturated substituent which is attached to the principal carbon chain. Now the name of this unsaturated substituent would be ethenyl, and it is also known as vinyl, right? Now let's come to the another example, propene. It has 3 carbons. Now to differentiate, one carbon is green, one carbon is blue and one carbon is red. If I subtract one hydrogen from the green carbon, my unsaturated substituent would be like this. It is unsaturated substituent. Unsaturated substituent. In this case, I have removed one hydrogen from the blue carbon, so it is the unsaturated substituent, right? In this third case, I have removed one hydrogen from the red carbon. Now it is the resulting substituent, unsaturated substituent, right? Now the carbon which is directly attached to the principal carbon chain is known as open valent carbon. तो स्क्रीन पर जो भी कार्बन आपको येलो बॉक्स में दिख रहा है, इट इज ओपन वैलेंट कार्बन, राइट? येलो बॉक्स वाला कार्बन जो है, इट इज ओपन वैलेंट कार्बन. This I have discussed in my previous lectures, right? Now here, how we would name this? It is the open valent carbon is always number 1. It is always given the number 1 that I have discussed in my previous lectures. So the name of this unsaturated substituent would be 2-propenyl. It is 2-propenyl,
right? Now in this case, the name of this unsaturated substituent would be 1-methyl ethinyl. It would be the name of this unsaturated substituent. In the case third, where I have removed hydrogen from the red carbon, the name of this substituent would be 1-propenyl, right? So to remind you that the open valent carbon is always number 1, it is always number 1, right? Clear? Now let's take another example of 1-butene. यहाँ पर हम 1-butene से जो है 1-butene के कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और हमको अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, राइट? एल्किनाइल ग्रुप्स मिलेंगे हमको. तो कौन कौन से एल्किनाइल ग्रुप्स मिलेंगे देखते हैं. सबसे पहले मैं कार्बन 1 इससे हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ, राइट? आई वुड बी गेटिंग दिस unsaturated substituent. तो ओपन वैलेंट कार्बन जो है इट इज ऑलवेज नंबर 1 विदाउट एनी एक्सेप्शन. तो यहां पर इस अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट का नाम होगा, इट्स नेम वुड बी 1-butenyl, राइट? अब दूसरे केस में मैं C2 कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करता हूं एंड आई वुड बी गेटिंग दिस अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट. ये मुझे अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट मिला. अब इसको मैं किस तरीके से नेम करूंगा देखिए. ओपन वैलेंट कार्बन को बाय डिफ़ॉल्ट हम हमेशा नंबर 1 रखते हैं, 1. अब मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा, आई वुड बी टेकिंग दिस अनसैचुरेटेड कार्बन, राइट? तो अब ये आपका CH3CH2 वाला पार्ट जो हो गया, इट वुड बी द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सब्स्टिट्यूएंट, राइट? तो इसका नाम क्या होगा? 1-ethyl ethinyl. Its name would be 1-ethyl ethinyl. अब अगला केस देखते हैं. यहाँ पर मैं C3 कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव करता हूँ एंड आई वुड बी गेटिंग दिस अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट. अब इसकी नेमिंग करते हैं. ओपन वैलेंट कार्बन ऑलवेज नंबर 1. तो ये मेरा हो गया, इस अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट का नेम हो गया 1-methyl 2-propenyl, राइट? अब नेक्स्ट केस देखते हैं हम. यहाँ पर C4 कार्बन से मैंने हाइड्रोजन को रिमूव किया है एंड आई एम गेटिंग दिस अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट. अब इस अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट की नेमिंग करते हैं. ओपन वैलेंट कार्बन ऑलवेज नंबर 1. तो इसका नाम हो गया 3-butenyl, राइट? अब एक केस और देख लेते हैं हम. 2-methyl 2-butene. 2-methyl 2-butene के कार्बन नंबर 4 से मैं एक हाइड्रोजन माइनस कर देता हूँ एंड एज ए रिजल्ट आई वुड बी गेटिंग दिस अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट. The carbon which is directly attached to the principal carbon chain is open valent carbon and it is always number 1.
तो इस अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट का नेम हो गया 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनाइल। अब ये जो अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट है एंड इट इज मिथाइल, जिसका लोकेशन इस सब्स्टिट्यूएंट पर थर्ड है। दैट्स व्हाई आई रोट 3 मिथाइल। इट इज 3 मिथाइल 2 ब्यूटेनाइल, राइट। आई थिंक कंसेप्ट क्लैरिटी डन है। अब एक ऐसा केस जिसमें सब्स्टिट्यूएंट जो है इट इज अटैच्ड थ्रू डबल बॉन्ड विद प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो अब हम अपने अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट को किस तरीके से नेम करेंगे? इट इज एग्जाम्पल 1, केस 1। यहां पर देखिए, प्रिंसिपल कार्बन चेन से CH2 इज डायरेक्टली अटैच्ड, not by a single bond but by a double bond, so it would be named as methylene। इसको याद रखिए आप, it is named as methylene, right। अभी इसी कंसेप्ट को हम एक एग्जांपल से और क्लियर करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन मैं दो तरीके से सोच सकता हूँ। सबसे पहले मैंने प्रिंसिपल कार्बन चेन को इस तरीके से सोचा। दूसरा तरीका जो होगा मेरे सोचने का वो ये हो सकता है। अब जहां पर मैंने चेन को रेड से मार्क किया है उसमें देख लेते हैं हम कितने कार्बन मिल रहे हैं। वी आर गेटिंग 5 कार्बन प्लस 3 डबल बॉन्ड्स। अब जहां पर मैंने चेन को ग्रीन से मार्क किया है वहां पर देख लेते हैं कितने कार्बन मिल रहे हैं और कितने मल्टीपल बॉन्ड्स मिल रहे हैं। 6 कार्बन प्लस 3 डबल बॉन्ड्स। राइट। तो देखिए मेरा ये सिलेक्शन प्रिंसिपल कार्बन चेन के लिए गलत है एंड इट इज़ माय राइट सिलेक्शन। अब इस प्रिंसिपल कार्बन चेन पर हम नंबरिंग करते हैं। तो मैंने जो ग्रीन कलर से नंबरिंग किया है इसमें थर्ड पोजीशन पर मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। इट इज सब्स्टिट्यूएंट। ये मेरा वो सब्स्टिट्यूएंट है विच इज अटैच्ड टू द प्रिंसिपल कार्बन चेन थ्रू डबल बॉन्ड। इट इज माय प्रिंसिपल कार्बन चेन, राइट। अब एक तरीका और हो सकता है इसको नंबरिंग करने का। तो देखिए यहां पर मुझे फोर्थ पोजीशन पर, अगर मैं रेड कलर से जैसे नंबरिंग करी है उस तरीके से अगर उस पैटर्न पर अगर नंबरिंग करता हूं तो मुझे फोर्थ पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। और जो ग्रीन कलर से मैंने नंबरिंग करी है उसमें मुझे थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट मिलता है। तो मतलब ग्रीन कलर से जो मैंने नंबरिंग किया है इट इज द करेक्ट वे टू नंबर द प्रिंसिपल कार्बन चेन। ये जो रेड कलर से मैंने जो नंबरिंग किया है इट इज रॉन्ग। तो अब इसकी नेमिंग कर लेते हैं हम, इस कंपाउंड की नेमिंग कर लेते हैं। तो ये जो मेरा सब्स्टिट्यूएंट है इट इज अटैच्ड टू द प्रिंसिपल कार्बन चेन विद डबल बॉन्ड। 1 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट है तो इसको मैं बोलूंगा मिथाइलिन। इट इज मिथाइलिन। तो इस कंपाउंड का नेम हो गया 3 मिथाइलिन। फर्स्ट और सेकंड के बीच में डबल बॉन्ड, 4 और 5 के बीच में डबल बॉन्ड और 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड। तो अब मैं डबल बॉन्ड की लोकेशन बताऊंगा। 1 4 5 हेक्सा ट्राइन।
इट वुड बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड 3-मिथाइलिन। ये आपका लोकेशन बता रहा है, लोकेशन और सब्स्टिट्यूएंट बता रहा है, राइट, ऑन द प्रिंसिपल कार्बन चेन। मिथाइलिन इज योर सब्स्टिट्यूएंट, 3 is location of your substituent, 1 4 5 ये लोकेशन बता रहा है डबल बॉन्ड का। हेक्सा, it is your root word because principal carbon chain has 6 carbon. Trine, it is indicating that the principal carbon chain has 3 double bonds, right, at location 1, at location 4 and at location 5. I think concept clarity है। नाउ वी वुड मूव टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब मान लीजिए आपका अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट जो है वो डबल बॉन्ड से अटैच है प्रिंसिपल कार्बन चेन से, एंड इट इज 2 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट। सो इट वुड बी नेम्ड एज इथाइलिडीन, राइट, इट वुड बी नेम्ड एज इथाइलिडीन। यहाँ पर आपका जो अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट है, इट इज 3 कार्बन अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड टू द प्रिंसिपल कार्बन चेन वाया डबल बॉन्ड, सो इट्स नेम वुड बी प्रोपाइलिडीन। क्लियर? नाउ टेक द एग्जांपल फॉर कंसेप्ट क्लैरिटी। आपके सामने ये जो कंपाउंड है इसमें प्रिंसिपल कार्बन चेन मैं 2 तरीके से सोच सकता हूँ। द मोस्ट प्रोबेबल वेज टू थिंक अबाउट द प्रिंसिपल कार्बन चेन, राइट। एक प्रिंसिपल कार्बन चेन को मैंने इस तरीके से सोचा, जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है, और अब मैं प्रिंसिपल कार्बन चेन को इस तरीके से सोच रहा हूँ, राइट। अब देखिए, जिसमें मैंने रेड कलर से प्रिंसिपल कार्बन चेन को मार्क किया है, उसमें हमें कितने कार्बन मिल रहे हैं पहले तो वो कार्बन काउंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7, we are getting 7 carbon plus 3 double bonds, 3 डबल बॉन्ड्स। और ग्रीन कलर से मैंने जो चेन को मार्क किया है, कार्बन चेन को मार्क किया है, इसमें मुझे कितने कार्बन मिल रहे हैं काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन प्लस 3 डबल बॉन्ड्स। तो डेफिनेटली मैंने जिस कार्बन चेन को ग्रीन कलर से मार्क किया है वो प्रिंसिपल कार्बन चेन, इट इज द करेक्ट सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्लियर? बिकॉज वी आर गेटिंग मोर नंबर ऑफ कार्बन। दोनों ही केसेस में, चाहे वो रेड हो चाहे ग्रीन हो, हमको 3 डबल बॉन्ड्स मिल रहे हैं, पर रेड में हमको 7 कार्बन मिल रहे हैं और ग्रीन में हमको 8 कार्बन मिल रहे हैं। क्लियर? तो अब देख लेते हैं यहाँ पर किस तरीके से हम नंबरिंग करेंगे। It is the principal carbon chain and it is the substituent. Right? अब देखिए, जो मैंने रेड कलर से नंबरिंग दिया है उसमें मुझे डबल बॉन्ड जो है वो पोजीशन 1 पर मिल रहा है, रेड कलर से जो मैंने नंबरिंग दिया है उसमें मुझे डबल बॉन्ड जो है वो पोजीशन 2 पर मिल रहा है, पोजीशन 5 पर मिल रहा है और पोजीशन 7 में मिल रहा है।
क्लियर। और जो सब्स्टिट्यूएंट मुझे मिल रहा है वो 4th पोजीशन पर मिल रहा है। अब मैं ग्रीन कलर से नंबरिंग करता हूं। अब मुझे जो डबल बॉन्ड मिल रहा है वो 1st पोजीशन पर मिल रहा है। मुझे 3rd और 4th के बीच में डबल बॉन्ड मिल रहा है, 3rd कार्बन और 4th कार्बन के बीच में। मुझे 6th और 7th कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड मिल रहा है, राइट। तो मेरा सेट ऑफ लोकेंट्स रिगार्डिंग द डबल बॉन्ड रेड कलर की मार्किंग से जो मिल रहा है वो है 2, 5, 7, और ग्रीन कलर से जो मैंने नंबरिंग किया है उससे मुझे मिल रहा है 1, 3, 6। तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस जो है आप ये देखिए कि रेड कलर में मुझे सेट ऑफ लोकेंट में यहाँ 2 मिल रहा है, 2, और ग्रीन कलर से जब मैंने मार्किंग किया तो मुझे 1 मिल रहा है। सो इट इज द पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो सेट ऑफ लोकेंट में आपको जैसे ही फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस मिलता है वैसे ही आपको डिसीजन लेना होता है, राइट, एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस तो मुझे मिल ही गया है। तो मेरा जो प्रिंसिपल कार्बन चेन को नंबरिंग करने का पैटर्न रहेगा वो ग्रीन कलर वाला रहेगा। जैसे ग्रीन कलर से जो मैंने नंबरिंग दिया है कार्बन को वो रहेगा, राइट। तो देखिए अब इसका नाम क्या हो गया। 4th पोजीशन पर, सॉरी 5th पोजीशन पर मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। सो इट वुड बी 5 इथाइलिडीन, राइट। फिर अब मैं लोकेशन लिखूंगा डबल बॉन्ड्स की। इट इज एट 1, 3 एंड 6। 1, 3, 6, octa trine. So it would be the name of this compound. एक तरीका और भी हो सकता है, that is 5 ethylidene octa 1, 3, 6 ट्राइन। क्लियर? आई थिंक कंसेप्ट क्लैरिटी है। अब हम ऐसे अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करते हैं जहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स में ट्रिपल बॉन्ड हो, राइट। सो इट वुड बी इथाइनिल। इट इज इथाइनिल एंड इट इज, ये मेरा ओपन वैलेंट कार्बन है। ओपन वैलेंट कार्बन इज ऑलवेज नंबर 1। तो मेरे इस अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट का नेम हो गया 1 प्रोपाइनिल। और इस अनसैचुरेटेड सब्स्टिट्यूएंट का नेम हो गया 2 प्रोपाइनिल, राइट। कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। अब देखिए ये मेरी हुई प्रिंसिपल कार्बन चेन, राइट। अब इस प्रिंसिपल कार्बन चेन को नंबरिंग करने का मैं 2 तरीके से सोच सकता हूँ। एक तरीका तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए जो ग्रीन कलर से मैंने नंबरिंग किया है उसमें मुझे 1st पोजीशन पर और 5th पोजीशन पर डबल बॉन्ड मिल रहा है। इट इज़ माई सेट ऑफ लोकेंट्स रिगार्डिंग दी
मल्टीपल बॉन्ड्स रिगार्डिंग दी डबल बॉन्ड्स। और थर्ड पोजीशन पर मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अब मैं रेड कलर से मार्किंग करता हूं। यहां पर भी मुझे जो सेट ऑफ लोकेंट्स मिल रहा है रिगार्डिंग द लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड वो 1 और 5 ही मिल रहा है। मतलब डबल बॉन्ड की पोजीशन के हिसाब से तो नंबरिंग, चाहे वो मैंने ग्रीन कलर से किया हो, ग्रीन कलर वाले पैटर्न से किया हो, या फिर मैंने रेड कलर वाले पैटर्न से किया हो, यहाँ पर मैं डिसीजन नहीं ले सकता। दोनों में 1515 मिल रहा है, आई कैन नॉट टेक द डिसीजन। अब रेड से जो मैंने नंबरिंग किया है उसमें सब्स्टिट्यूएंट को जो पोजीशन मिल रही है वो मिल रही है 4। Hence, my numbering given in green color, it is the correct way. It is the correct way to number the principal carbon chain. तो यहां पर देखिए आप थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट है, इट इज द सब्स्टिट्यूएंट। तो मैं इस कंपाउंड को नेम करूंगा 3 मिथाइलिन, राइट। फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड और फिफ्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड 1 5। प्रिंसिपल कार्बन चेन में 6 कार्बन्स हैं, हेक्साडाइन। सो इट वुड बी द नेम ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। आई थिंक कंसेप्ट क्लैरिटी डन है। अनदर एग्जाम्पल। अब देखिए मैं इस तरीके से भी प्रिंसिपल कार्बन चेन को सोच सकता हूं और इस तरीके से भी सोच सकता हूं, राइट। जो मैंने रेड कलर से मार्क किया है प्रिंसिपल कार्बन चेन को, उसमें देखते हैं हमें 2 डबल बॉन्ड्स मिल रहे हैं, 2 डबल बॉन्ड्स। कितने कार्बन मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहे हैं। और 1 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। वन सब्स्टिट्यूएंट, राइट। अब ग्रीन कलर से जो मैंने कार्बन चेन को मार्क किया है, देखते हैं उसमें कितने कार्बन मिल रहे हैं। Here I am getting 6 कार्बन। कितने डबल बॉन्ड्स? 2 डबल बॉन्ड्स। और कितने सब्स्टिट्यूएंट्स? 1 सब्स्टिट्यूएंट, राइट। तो ग्रीन कलर से जो मैंने कार्बन चेन को इंडिकेट किया है, मार्क किया है, इट इज द करेक्ट सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्योंकि चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, हमें डबल बॉन्ड्स कितने मिल रहे हैं? 2। वी आर गेटिंग 2 डबल बॉन्ड्स, वी आर गेटिंग 1 सब्स्टिट्यूएंट इन बोथ केसेस। पर ग्रीन कलर से जो मैंने मार्क किया है कार्बन चेन को, वहां पर हमें कार्बन मिल रहे हैं 6। दैट्स वाई इट इज द करेक्ट वे, इट इज द करेक्ट सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल कार्बन चेन, राइट। अब हम नंबरिंग देते हैं। It is the correct way of
नंबरिंग दी प्रिंसिपल कार्बन चेन, जो मैंने ग्रीन से नंबरिंग किया है। थर्ड पोजीशन पर मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। मेरा ये सब्स्टिट्यूएंट कौन सा हो गया? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम इथीन, सो इट इज इथेनाइल, इट इज इथेनाइल। थर्ड पोजीशन पर है ये। तो अब मैं इसको नेम करता हूं, इस कंपाउंड को। फर्स्ट पोजीशन पर डबल बॉन्ड और फोर्थ पोजीशन पर डबल बॉन्ड और थर्ड पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट। सो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3-इथेनाइल 1,4। ये 1,4 लोकेशन है डबल बॉन्ड्स की। 1,4 हेक्सा डाइन, राइट। देखिए, इस क्वेश्चन को आप गलत भी कर सकते हैं अगर आपका नंबरिंग इस तरीके से रहता है तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ पर जो आपको मल्टीपल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का लोकेशन मिल रहा है वो मिल रहा है 2, राइट। और जो करेक्ट वे है उसमें मल्टीपल बॉन्ड का लोकेशन मिल रहा है 1। क्लियर? तो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज 3-इथेनाइल 1,4 हेक्साडाइन। ये जो रेड कलर वाला है, इट इज द रॉन्ग वे ऑफ नंबरिंग, बिकॉज यहाँ पर हमको डबल बॉन्ड का लोकेशन मिल रहा है 2 और 5, और जो मैंने ग्रीन कलर से नंबरिंग किया है उसमें डबल बॉन्ड का लोकेशन मिल रहा है 1 4। मुझे फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस में ही डिसाइड कर लेना है। तो जैसे ही मैंने ग्रीन कलर से नंबरिंग किया मुझे लोकेशन मिलता है 1 और 4, राइट। ग्रीन कलर की नंबरिंग में मुझे क्या लोकेशन मिल रहा है मल्टीपल बॉन्ड का? 1 और 4। और रेड कलर की नंबरिंग से मुझे क्या लोकेशन मिल रहा है? 2 और 5। सो इट इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। मैंने यहीं डिसाइड कर लिया था, मैं आगे 4 पर गया ही नहीं था, मैं आगे 5 पर गया ही नहीं था। क्लियर? फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस पर ही आपको डिसीजन लेना होता है। आई थिंक कंसेप्ट क्लैरिटी है। अब देखिए, इस कंपाउंड में मैं प्रिंसिपल कार्बन चेन दो तरीके से सोच सकता हूं। एक तो मेरा सोचने का तरीका ये रहेगा, राइट। मैं उन केसेस को डिस्कस कर रहा हूं जो जिसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है, सोचने की प्रोबेबिलिटी है कि हाँ ये प्रिंसिपल कार्बन चेन होती है, तो मैं उन ऑप्शंस को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, राइट। और एक तरीका जो होगा वो ये होगा। क्लियर? तो देखिए, यहां पर आपको कितने कार्बन मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5। यू आर गेटिंग 5 कार्बन। 5 कार्बन की चेन है। कितने मल्टीपल बॉन्ड्स मिल रहे हैं? 2 मल्टीपल बॉन्ड्स। सब्स्टिट्यूएंट कितना मिल रहा है? सब्स्टिट्यूएंट 1 मिल रहा है, 1 सब्स्टिट्यूएंट। अब जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है जिस चेन को, वहां पर देख लेते हैं कितने कार्बन मिल रहे हैं। हेयर आई एम गेटिंग 6 कार्बन, 2 मल्टीपल बॉन्ड्स, प्लस 1 सब्स्टिट्यूएंट। तो जो मैंने ग्रीन कलर से कार्बन चेन को मार्क किया है, इट इज द प्रिंसिपल कार्बन चेन, इट इज द प्रिंसिपल कार्बन चेन।
राइट। अब हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग सबसे पहले मैं रेड फॉन्ट से कर रहा हूं, राइट। 1 2 3। अब देखिए, जब मैंने रेड कलर से नंबरिंग किया है तो मुझे सेट ऑफ लोकेंट्स फॉर मल्टीपल बॉन्ड क्या मिल रहा है, सेकंड पोजीशन पर मुझे ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है और फिफ्थ पोजीशन पर मुझे डबल बॉन्ड मिल रहा है, राइट। और फोर्थ पोजीशन पर मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है। अब मैं इसको ग्रीन कलर से नंबरिंग करता हूं। तो देखिए, जब ग्रीन कलर से नंबरिंग किया तो मुझे फर्स्ट पोजीशन पर ही मल्टीपल बॉन्ड मिल गया। फिर उसके बाद मुझे मल्टीपल बॉन्ड मिला फोर्थ पोजीशन पर, जो कि ट्रिपल बॉन्ड है, राइट। और थर्ड पोजीशन पर मुझे सब्स्टिट्यूएंट मिला। तो यहीं पर ही डिसाइड हो गया ये कि कौन सा पैटर्न सही है, कौन सा नंबरिंग पैटर्न सही है। यहां पर मुझे मल्टीपल बॉन्ड की लोकेशन मिल रही है 2 5 और यहां पर मिल रही है 1 4। सो इट इज द करेक्ट वे ऑफ नंबरिंग द प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो ठीक है, एंड इट इज द रॉन्ग वे। तो इस कंपाउंड की नेमिंग कर लेता हूं मैं। तो इस कंपाउंड का नेम हो गया 3 इथिनाइल 1 4 हेक्सेन आइन। अब देखिए, यहां पर E जो है इट इज कमिंग बिफोर Y, सो आई वुड ड्रॉप डाउन E। तो मैं E जो है वो ड्रॉप डाउन कर दूंगा। तो मेरे कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, इट वुड बी 3 इथिनाइल 1 4 हेक्स इन आइन। मैंने E जो है वो ड्रॉप डाउन कर दिया है। या फिर आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3 इथिनाइल हेक्स 1 इन 4 आइन। आई थिंक कंसेप्ट क्लैरिटी है। Okay, dear students, if you think my lectures are contributing in your studies, please like the video, subscribe my channel and press the bell icon to know about the new released videos. Clear? तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स को मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है, आई थिंक टीचर्स को भी मोटिवेशन की ज़रूरत रहती है। इफ़ यू थिंक दैट द वीडियो इज़ contributing to your studies, please like the video, subscribe my channel and press the bell icon. Thank you. Have a nice time.